हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे व्हाट इज रेज्यूमे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेज्यूमे एंड व्हाट इज एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आंसर देने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर नीरज कुमार, हु इज अ टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन, हु इज अ करियर कोच एंड हु इज अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट. Sir has also worked as a recruiter with Naukri.com, and sir has a fair enough idea how the recruitment process works. I welcome you, sir. Thank you. Thank you so much, Swati. And guys, hi to all of you. As we are going to talk about recruitment process, how it works. So it's really very important topic और आज के दौर में ये इसकी बहुत ही ज़रूरत है. And for all the students, it's really, really very important. Okay. So yeah, Swati, you can start. Yeah, yes, sir. So my first question was like, sir, is resume that much important? क्या है sir importance of resume? Yes, of course, it's really, really very important. First of all, for identifying the importance of resume, एक चीज आप लोगों को जाननी होगी कि what is the purpose of designing a resume? Why you design your resume? The purpose of designing a resume is to get an interview call. So you design your resume and send it to the recruiter. And what is your expectation? That the recruiter should give you a call. So your resume should be that much impactful कि आपको एक इंटरव्यू कॉल आ जाए इंटरव्यूअर से and you want your resume to be selected, not rejected. So it's really, really very important To get shortlisted. Yes, it's a really very important. It's a one of the important process of recruitment. And it's the first. It's a entry. It's a doorway. ओके सर. So that's सर आपने एज अ रिक्रूटर भी काम किया है सर, तो व्हेन यू सी अ रेज्यूमे व्हाट मेक्स यू लाइक या आई नीड दिस पर्सन इन माय जॉब, व्हाट मेक्स अ पर्सन टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन द जॉब? लुक, अगर मैं बात करूं अपने खुद के एक्सपीरियंस की, तो जब मैं काम कर रहा था एज ए रिक्रूटर, तो as a recruiter we need to look into these aspects. First and foremost thing is your keyword, and those keywords which you have highlighted in your resume should match with our job details. So if I'm looking for certain job details for my client, okay, and who may have asked me to give 100 fresh BTech engineering expert or anyone, MBA, BBA, anyone, so I would be looking for my job post in which I have mentioned the keywords. तो मेरे मेंशन कीवर्ड से आपके रिज्यूमे के जो कीवर्ड्स हैं वो मैच करने चाहिए. अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी रिजेक्टेड. So first and foremost thing is the keyword. The next thing is the experience. If you are a fresher, then internships, projects, क्या क्या projects किया आपने college campus में, whether it is technical, whether it is non-technical. If it is matching with the job, you have to highlight those stuff on priority. If it is related with any kind of stuff which you have done in your core domain of engineering or core domain of your marketing and all, so highlight those internships on priorities, and it should match with the job details that I'm looking for. And then if you have had any kind of experience related with some volunteering experience, some kind of experience related with extracurricular activities where you have managed the entire team, please highlight those stuff. That really works a lot. ओके सर, आपने तो रेज्यूमे के इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया. सो नाउ आई हैव हर्ड so many times like with a recruiter person or any students in a BTech, ये ATS friendly resume, ATS friendly resume, ये क्या होता है सर ATS friendly resume? गुड क्वेश्चन स्वाति. ATS फ्रेंडली रिज्यूमे पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल 4-5-6 ईयर से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है. क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ गई है? क्योंकि इसने जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है, इसने HR की लाइफ को ईजी कर दिया. HR लाइफ मीन्स हम जैसे रिक्रूटर, जब हम रिक्रूटमेंट करते थे, सो वी हैड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स मैनुअली. We had to find out the keywords and those stuff before posting resume or before segregating the resume. So ATS is considered as applicant tracking system. It's a kind of software, and your resume should be ATS friendly. If it is not ATS friendly, it will be out of the system. Frankly speaking, guys, what happens, 75% of resumes are getting rejected before reaching it to the human HR. ATS is a kind of robotic HR which really selects your resume. So it makes life easy for the HR, but it makes life difficult for the people who are applying for, because competition is huge. So your resume should be ATS friendly. If it is not ATS friendly, it will be rejected. तो अब हमने ATS के बारे में तो जान लिया सर. हाउ टू डू दिस ATS फ्रेंडली resume?
कोई टूल्स रिसोर्सेस है जिससे हम एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। एंड मुझे लगता है आप लोग जिस दौर में रह रहे हैं ये दौर तो एआई का है, एंड एआई इज टू मेक आवर लाइफ इजी। Okay, so what are those AI tools through which you can identify what are the keywords that I need to add to my profile and add to my profile or my resume, so that my resume should be passing through ATS. तो मेरा ये सजेशन होगा गाइज कि इफ यू आर यूजिंग एनी AI tools, so you have to be pro in using AI tool. Pro doesn't mean that you to have to completely diverge into AI, but how you are going to use AI tools for your own benefit. Okay, and you have to be a good in your prompt design. So I'll recommend few AI tools like ChatGPT, you guys are familiar with. Then there is one more, Claude, and then Gemini. These AI tools will help you to find out the elements for your resume. What we can add. Yes, exactly. So like just for example, you have to be very specific in your prompt. Okay, because most of the time what people do, they are seriously jumping into their prompt. बहुत सोचते हैं कि जैसे prompt दें तुरंत मेरे को आंसर आ जाए. Okay, and they do not have patience to write the entire specific content as a prompt. They just write one or two words and then enter, and they look for certain kind of responses. Okay, but what happens, what you have to do, you have to be very specific. If you have to identify certain things for your resume, whether it is keyword, whether it is all those stuff which you have to accommodate in your resume, which should make your resume ATS friendly. So what you have to do, go to ChatGPT or Claude or any AI tool, write down this prompt, guys. Be more specific. Okay, what you have to do, you write down that prompt like, okay, ChatGPT, design the resume content for me, okay, and make it ATS friendly. And for your reference, the below are my details. Start with inverted comma and then start writing your detail. If you're a engineering student and you are looking for internship, or if you are an engineering student, you are looking for the job, you're in final year, or if you are any student who is looking for the job or internship, please write it like that, that I am pursuing my BTech from computer science domain or any domain which you are specifically doing, and then talk about that I'm into my final year and I'm looking for certain job opportunities, and please design the resume based on my experience, my expertise, my projects. Mention those projects. Write one paragraph. Okay, it's okay to write one paragraph. Give time to write one big paragraph. Big paragraph prompt, because people do what they do, they just write one or two sentence, one or two sentence, sometimes they write one word and enter and they are happy with the result. But if you will be more specific to AI, they will understand you better and you will have a better result. So those results are supposed to be accommodated in a very specific template, and those templates are supposed to be very easy. बहुत easy template होना चाहिए. It should not be very complicated, like ज़्यादा ना बार ग्राफ होना चाहिए ना टेबल होना चाहिए. It should be very simple and precise. क्योंकि ATS क्या करता है, जो सिंपल रिज्यूमे टेम्पलेट होते हैं उन्हीं को फिल्टर करके निकालता है. अदरवाइज आपके रेज्यूमे बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, डिजाइन्स हैं, फोन डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, तो इट विल रिजेक्ट योर रेज्यूमे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट one template, a simpler template. You can find it anywhere through Canva or any other resource. Okay, easy one. Easy one means without any complication, very simple format. Find out the content from particular AI tool. Copy paste the content. Okay, because you have already told AI to generate ATS friendly, so it will give the content based on your experience, based on your prompt which you have kept for, and then design your resume. That will make sure your resume is ATS friendly. सर अब हमने एज यू सेड हमने AI टूल्स यूज करके प्रॉम्प्ट भी डाल के हमने ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बना दिया. तो सर नेक्स्ट how we can check whether this resume what we have created is ATS friendly or not? Good question. I was expecting this. मैं जान ही रहा था कि ये क्वेश्चन तुम जरूर पूछोगे कि अगर हमने ATS रेज्यूमे बना तो लिया, उसको चेक कैसे करेंगे कि हमारे ATS का स्कोर कैसा है. हाँ. ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू गो एंड सर्च इन गूगल ATS स्कोर, गिव ATS स्कोर फॉर माई रेज्यूमे. देयर विल बी मल्टीपल वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएंगे. यू जस्ट नीड टू गो टू एनी वन और एनी टू, क्रॉस चेक 2-3 बिकॉज यू कैन कंपेयर इजीली. तो आपने जो अपना रेज्यूमे बनाया है ATS फ्रेंडली, विच यू मे हैव थॉट दैट ओके ATS AI से मैंने अपना ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बना लिया, अब उसकी स्कोर चेक करनी है. तो क्या करना है, उसको अपने
किसी भी वेबसाइट में विच कैन गिव यू अ स्कोर, Score. जाओ स्कोर चेक करो, हम्म, ठीक है, अपलोड कर दो अपना रिज्यूमे, इट विल गिव यू अ स्कोर. व्हेन योर स्कोर इज अबव 70 हम्म, or between 70 to 80%, हम्म, then you should be sure that my resume is ATS ATS friendly. friendly. अगर वो 70 से नीचे है तो ATS friendly नहीं, तो वो फिर रिजेक्ट हो से जाएगा, वो प्रॉम्प्ट रिजेक्ट हो वगैरह जाएगा. चेंज करना हाँ एग्जैक्टली, हाँ गुड. अगर कुछ गड़बड़ है या 70 से नीचे है, then again you have to work on your प्रॉम्प्ट keywords, ओके. prompts and all. ठीक है, this is all. सर तो अब हमने ये ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बना दिया, ये तो रेज्यूमे ऑफलाइन के लिए हो गया. जब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन जॉब आ गया, इंडीड आ गया, naukri.com आ गया, इधर हाउ वी शुड क्रिएट अ प्रोफाइल एंड ऐड कीवर्ड्स दैट द रिक्रूटर शुड फाइंड अस एंड हायर अस. विजिबिलिटी कैसे बढ़ाए सर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में? गुड क्वेश्चन स्वाति, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी है. इट रिलेट्स विथ माय फेवरेट टॉपिक दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग का क्या है कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ विजिबल टू द प्लेटफॉर्म. हमने प्रोफाइल तो बना लिया, लेकिन मेरी प्रोफाइल की विजिबिलिटी क्या है? हाँ, जॉब्स नहीं मिल रहे हमारे प्रोफाइल से. विजिबिलिटी नहीं मिल रहे हैं बिकॉज मैंने काम नहीं किया उस पर. ठीक है, तो मेरी एक स्ट्रेटजी है और एक छोटी सी स्टोरी है. इफ यू परमिट आई हाँ, कैन. yes, yes. स्टोरी ये है कि उसमें हमें क्या करना है. स्टोरी स्टार्ट होती है कि चलो मैं एज ए रिक्रूटर हूँ, ठीक है, मैं एज ए रिक्रूटर हूँ और मेरे पास कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आया और प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे बोला कि सर मुझे रिक्वायरमेंट है 200 फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स की. तो मैंने बोला ठीक है, आई कैन गिव यू. So I'm a HR expert, so I can give you. I know what I'm supposed to do in background, but I will ask to the person, to the project manager in detail. पूरा डिटेल में पूछूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी. तो वट एवर इंफॉर्मेशन द पर्सन इज गोइंग टू गिव मी, आई एम गोइंग टू लिसन टू इट, नोट डाउन टू इट, एंड आफ्टर नोटिंग डाउन आई हैव टू मेक श्योर कि इससे मुझे क्या क्रिएट करना है. जेडी. जेडी इज जॉब डिटेल्स. ये जेडी मुझे इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि इस जेडी के बेस पे मुझे पोस्ट करना है एक जॉब पोस्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक naukri.com, Indeed, LinkedIn Job, Monster, whatever it is. Yes, sir. ओके, सो अब मुझे पोस्ट करने के पहले आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे पूरा रिसर्च करना है क्योंकि मेरे पोस्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो. मुझे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है. 100 क्लाइंट्स चाहिए 100 उसको रिज्यूमे के साथ 100 पीपल चाहिए, उनका पूरा प्रोसेस, मुझे पूरा प्रोसेस करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि आई विल गो एंड सर्च आउट what are the key elements or key skills as a keyword I have to add to my job post details, so that my job post should be visible to all the people or maximum number of people and required people. मेरा जो client customer हो वो मेरे पास attached हो और मेरे पास जो required चाहिए मुझे data वो मुझे मिल जाए, and then it makes my life easy. तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी सर्च करूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब पोस्ट दे आर डूइंग. इफ इट इज सिमिलर टू माय जॉब पोस्ट व्हिच आई एम सपोज्ड टू गो फॉर, देन मैं क्या करूंगा कि उनसे जो उन्होंने कीवर्ड डाला है वो मैं सेग्रीगेट करूंगा. ठीक है, सब जगह से मैं कीवर्ड इकट्ठा करूंगा, कलेक्ट करूंगा, चाहे वो मेरे कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो. ठीक है, और जो फ्रेशर्स हो, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, आई विल हैव टू फाइंड आउट, आई विल डू my own search engine optimization. मैं रिसर्च करूंगा पूरा and I'll collect all those keywords together. पूरा कीवर्ड इकट्ठा करके एक साथ रखूंगा, फिर उसको फिल्टर करूंगा. फिल्टर करने के बाद I'll have to find out best suitable 15-16 keywords. क्योंकि ये जितने जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ लिमिटेशंस है, मैं सबके सब 100 कीवर्ड्स नहीं डाल सकता. मुझे डालने 10-15 whatever number they are looking for. There are limitations. तो मैंने डाल दिया, मैंने 15 डाल दिया कीवर्ड्स एंड आई हैड टू मेक श्योर कि मेरी ब्रांड विजिबिलिटी हो, मेरे जॉब पोस्ट हर जगह दिखे, मैक्सिमम रीच हो, उसका इंप्रेशन रीच हो, ज़्यादा लोग एप्लीकेशन अप्लाई करें तो आई शुड गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन. जितनी ज़्यादा रीच होगी मेरी विजिबिलिटी होगी. ओके, और एनीवे आई हैव टू सेटिस्फाई द क्लाइंट. और फिर सोच लो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एज ए जॉब सीकर अपना प्रोफाइल बनाया और उसमें से एक बंदा जो है उसने बहुत मेहनत की, जैसे मैंने रिसर्च किया उस बंदे ने भी रिसर्च की, पूरा कीवर्ड्स खोजा. ठीक है, बिफोर मेकिंग हिज प्रोफाइल विजिबल टू द ऑडियंस व्हाट ही डिड, ही और सी हैड डन मल्टीपल रिसर्च. वो हाँ कीवर्ड्स, क्योंकि जब तक कीवर्ड नहीं डालेगा उसकी विजिबिलिटी होगी, तो उसने पूरा किया, रिसर्च किया, कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, पूरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, गूगल में सर्च किया, कॉम्पिटिटर एज इन कि अपने सिमिलर लेवल के लोगों का प्रोफाइल देखा, क्यों उनका प्रोफाइल विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो उनसे कीवर्ड उठाया. कभी वो देखा कि चलो ये एक्सपीरियंस बंदा है 2-3 साल का, लेकिन इसका जो स्किल सेट है मुझे भी है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं गेन किया बट आई नो दिस स्किल सेट, तो व्हाई शुड नॉट आई ऐड टू माय प्रोफाइल. तो वो भी निकाल लिया, उसने भी वही सर्च किया
फिल्टर किया, बेस्ट सुटेबल डाल के रख दिया। और एक बंदा जो है उसने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, एंड दिस इज डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। इवन एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो डू दिस मिस्टेक। क्योंकि जब हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन दीज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है, जॉब हाँ पोर्टल्स एंड हाँ ऑल, सर, तो हम क्या करते हैं, जो भी रिकमेंडेशन मिलता है हम उसको टिक 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 करते जाते हैं। हाँ, जो वो टिक, पहले हाँ, आता जो है पहले जो रिकमेंडेशन वहां से आया, बेस्ड हमेशा ऑन द इनपुट्स विच वी हाँ हैव गिवन, they give the recommendation and we रिकमेंडेशन tick, टेक यस, and then we are satisfied। चलो हाँ, बन गया मेरा बन प्रोफाइल, गया पूरा, अब मेरे पास जॉब आएगा, अपने आप ऊपर से जॉब गिरेगा, ठीक है, ऐसा सोचते हैं हाँ लिटरली। सर, और जब ऐसा नहीं होता है देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, हाँ कि भाई इस ये तो प्लेटफॉर्म से हमें ओवररेटेड नहीं मिला, है। हाँ लाइक लिंक्डइन के बारे में तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि लिंक्डइन इज ओवररेटेड, naukri.com नौकरी इज ओवररेटेड। गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी एग्जांपल पूरा क्लियर करूंगा तो हाँ पूरा समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक बंदे ने, किसी ने, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस प्रोफाइल बना के छोड़ दिया, ठीक है। मेरा जब एज ए रिक्रूटर, रिमेंबर जब मैंने हाँ बोला, हाँ मैंने जॉब पोस्ट डाला, मैंने बोला कि 15 स्किल सेट स्किल डाल सेट, दिया, और हाँ मैंने एक और चीज भूल गया। मैंने एक और चीज दिमाग में रखा कि 15 में से अगर 10 से 12 मैच करेगा तो उस प्रोफाइल को मैं सेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे की प्रोफाइल रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बंदा था, उसका जब उसने जॉब एप्लीकेशन मेरा देखा, ठीक है, मेरा जॉब पोस्ट देखा, एप्लीकेशन नहीं, जब जॉब पोस्ट देखा उसने, तो उसका 10 to 12 मैच कर रहा था। और एक जिसने कुछ नहीं किया था मेहनत, उसका सिर्फ 5 मिल रहा था। हाँ अब मुझे ये बताओ कि दोनों को अप्लाई करना चाहिए या फिर उसी को करना चाहिए जिसका तो 10 to 12 मिल रहा था। जिसका 10 to 12 मैच हो रहा है उसको अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो बताया था हाँ क्राइटेरिया कि आप 10 के हाँ, ऊपर, क्योंकि ये क्राइटेरिया मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन हाँ लोगों पर को पता उनको नहीं है। पता नहीं है, हाँ लेकिन उनको ये समझना होगा कि मेरा 10 to 12 क्यों नहीं मिला, क्यों मेरे 5 मिले, हाँ क्योंकि why मेरे I पास should apply कीवर्ड्स and नहीं है। waste my application। जैसे मेरे रिजेक्ट होंगे एप्लीकेशन, मेरी प्रोफाइल डाउन जाएगी। हाँ दिस इज इट। अब मेरे को देखना होगा कि मेरे 5 क्यों मिल रही है, जॉब पोस्ट के लिए तो मैं भी काबिल हूँ, हाँ मेरी भी स्किल सेट स्किल है, सेट है, ये मैं भी कर सकता हूँ, वो इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो आई कैन ऑल्सो डू इट। अब क्या उसको, कमी हाँ, है, क्या कमी है, तो दैट पर्सन हैज टू आइडेंटिफाई एंड अगेन रीडू द वर्क व्हिच ही हैड नॉट डन, फिर से प्रोफाइल बना के प्रोफाइल कीवर्ड्स बनाना ऐड होगा, करके, कीवर्ड देखना होगा, अपने कॉम्पिटिटर लोगों के प्रोफाइल को देखने होंगे, और अच्छे से कीवर्ड सेलेक्ट करके फिर से फिर से प्रोफाइल को ऐड अपडेट करना। करना पड़ेगा। So this example itself tells about ki how much keyword is important and how much your brand visibility is important, whether it is LinkedIn, whether it is naukri.com and all. Indeed, I know. Okay, so yes, this is it. So, sir, as we all got to know that how we can create our ATS friendly resume, और ऑफलाइन की बात भी, ऑफलाइन में तो हमने किया ATS friendly resume. When we come to online, sir ने as sir said, in online platform when we create our profile, keywords are required. So I thought you all will follow us what sir said, and you'll create a ATS friendly resume. And we are so happy to have sir here. I'm so happy, sir. Thank you for your insightful information, and I hope all will use your information and create a ATS friendly resume and get their jobs done. And I hope, thank you for everyone listening our podcast, and stay tuned for our next podcast, and you'll get to know more about LinkedIn topics, job topics.